Good morning students, welcome to the class of EPS 1 again. And in last lecture we have studied about the living things which are dependent on each other. And it is a part 2. In this what we are going to learn, let's see. Here you can see, firstly we are going to see how the people and the animals and plants are dependent on each other. मीन्स प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूजफुल, हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूजफुल टू द ह्यूमन बीइंग और टू ईच अदर. दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ एनिमल्स हियर. You can see there are 4 types of animals. First is aquatic animal, then terrestrial animal, then arboreal animals and the amphibian animals. Now firstly let's see here aquatic animals. What do you mean by an aquatic animals? Aquatic animals are those who live in water. जो पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उसे हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं. वो बाहर नहीं आते पानी से. अगर पानी से बाहर उनको निकाला जाएगा तो वो तुरंत मर जाएंगे. तो ऐसे एनिमल्स जो है उनके एग्जाम्पल सी हियर. इट इज फिश, ऑक्टोपस, सी लायन, सी हॉर्स एंड वॉलरस. These all are aquatic animals. Many more are that, but I have given some of the examples of it. Now second type is terrestrial animals. Terrestrial animals means that animals that live on land. जो जमीन पे रहते हैं, वो पानी में नहीं रहते हैं, जमीन पे रहते हैं. वैसे एनिमल्स कौन से? यू कैन सी हियर सम ऑफ द एग्जांपल्स आर दैट एलिफेंट्स, लायन, डियर, cow. Just like that all the animals are terrestrial animals because they are living on land. They are terrestrial animals. See the third part, arboreal animals. What do you mean by arboreal animals? Arboreal animals are those who live in trees. जो पेड़ पे रहते हैं वैसे एनिमल्स को हम लोग arboreal animals कहेंगे. And see here examples: monkey, chameleon, tree frog, snake and python. Just like that many more are there. You can find out on the Google or you can find out in your books also. That are arboreal animals. Now the fourth type is amphibian animals. What do you mean by amphibian animals? Amphibian animals are live in water and on land. मतलब पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रह पाते हैं. वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियन एनिमल्स. See the examples like frog, toad or the snakes. So students, just like this, we are going to study all these things in details from our textbook. So please take out your textbook and let's move on. Thank you. Now students, let's see. Let's take the example of a tiger. A tiger has strips. एक टाइगर को क्या होता है? स्ट्रिप्स होते हैं उसके ऊपर. अ टाइगर लाइज इन वेट फॉर इट्स प्रे अमॉन्ग टॉल ग्रासेस. वाई ही इज सिटिंग इन द टॉल ग्रासेस? बिकॉज नो बडी कैन सी हिम एंड ही हैज़ अ स्ट्राइप सो दैट नो बडी कैन रिकॉग्नाइज हिम. इट्स prey cannot see it in the grass because of the strips. उसकी स्ट्रिप्स की वजह से, उसके ऊपर जो ये काली काली पट्टियाँ रहती है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि जो दूसरे प्राणी रहते हैं जिनका वो शिकार करता है वो उनको नहीं देख पाते हैं. एंड देन देयर आर एनिमल्स लाइक डियर, द नीलगाई एंड द बिजन इन grasslands. When the tiger is hungry, it can feed on them. तो टाइगर जब भी भूखा रहता है तो ज़्यादातर ये जो प्राणी जिनके नाम दिए हैं, डियर, नीलगाई एंड बिजन, उनको खाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है. तो यही जो प्राणी रहते हैं वो ज़्यादातर उसका पेट भरते हैं. फॉर अ टाइगर देयर ऑल्सो नीड टू बी अ वाटर होल नियर बाय which never dries up even in the summer. टाइगर उसी जगह रहता है जहाँ उसके आजू बाजू पानी का कोई पूल हो या फिर कोई छोटा सा
खड्डा हो, जहाँ पे हमेशा पानी रहे, वहीं पे क्या करता है टाइगर हमेशा रहता है। जहाँ पे समर सीजन में नेवर ड्राइड अप इवन इन द समर, मीन्स समर में भी वो सूखता नहीं है। ड्राइड अप का मतलब है सूख जाना। देयर मस्ट ऑल्सो बी डेंस वेजिटेशन, और जहाँ तक हो सके डेंस वेजिटेशन मीन्स वॉट, लॉट्स ऑफ ग्रीनरीज, tall grasses or caves in the hills and the mountains in the area so that the tiger can find shelter. Where the tiger is living? Near to the mountains like hills, mountains or the caves, or near to the grasslands. बड़े बड़े grasslands जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हो, प्लांट्स हो, वहाँ पे वो रहना पसंद करता है। A tiger inhabits an area where all these things are अवेलेबल। जहाँ पे ये सारी चीज़ें रहती वहीं पे टाइगर क्या करना चाहता है, रहना चाहता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे इन पिक्चर्स में हम लोग ने क्या दिया, वेयर डज अ टाइगर लीव, टाइगर कहाँ रहता है, जहाँ पे देखो जहाँ पे छोटे छोटे ऐसे हिल्स वगैरह रहती है वहाँ पे रहते हैं, या फिर जहाँ पे उनको पानी मिलता है दैट नेवर ड्राइड अप इन द समर, और वेयर द ग्रीनरी इज देयर, टॉल ग्रासेस आर देयर, एंड वेयर ही कैन गेट द प्रे, प्रे मीन्स शिकार, उसको जहाँ मिल जाता है वही जगह पे वो क्या करता है, रहता है। नाउ सी वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वी कीप एनिमल्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ अवर नीड्स। व्हाई वी आर कीपिंग द एनिमल्स? बिकॉज वी नीड देम, बिकॉज दे आर गिविंग सो मच थिंग टू अस, मीन्स लाइक काऊ है तो घर पे क्या मिलता है आप लोग को, दूध मिलता है ना, उसी में से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो जैसे बफेलोज है, बुलक्स है, हॉर्सेस है, कैट्स, डॉग्स, ये सब चीज़ें हम लोग क्यों करते हैं? बिकॉज वी नीड देम एंड दे आर यूजफुल टू अस। एंड देन व्हाट हैपन्स, सी वी फीड देम, वी टेक देम टू अ वेट, इफ दे फॉल इल दिस एनिमल्स टू रिटर्न ओवर अफ्लिक्शंस। व्हाट हैपन्स, जब भी आपको पता है जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें कोई ना कोई अच्छे से बात करे हम लोग से, या फिर हम लोग किसी के द्वारा कोई ऐसा हम लोग को दवाई ला के दे, या फिर हम लोग की देखभाल करे। वैसे ही एनिमल्स को भी क्या है, अफेक्शन चाहिए होता है। जब भी वो बीमार हो जाते हैं तो वो भी चाहते हैं कि कोई ना कोई क्या करे, हमारी देखभाल करें। सो बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जो है एक दूसरे से क्या है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। नाउ लेट्स सी द पेज नंबर 10। ऑन पेज नंबर 10 सी we get milk, meat, eggs and several other things from animals. These all things we are getting, I told you. Some animals are useful for carrying burdens or drawing carts. जैसे बुलक्स वगैरह रहते हैं तो क्या है, वो लोग क्या करते हैं, बैलगाड़ी वगैरह खींचने में मदद करते हैं। Domestic animals are also used to help with the heavy farm work in the fields. Dog guard our houses and sheep gives us wool. These all are the things like animals, how they are helping us. Now do you know even the excreta of domestic animals is of use to human beings. Excreta means the wastage which we have in our body, just like that all things we call as an excreta. जैसे कि ह्यूमन बॉडी में भी रहता है वैसे ही एनिमल बॉडी में भी रहता है, that is called as an excreta. And the dungs of cattle is made into dung cakes. आप लोग को मालूम है जैसे बफेलोज या फिर काउज, उन लोग का जो एक्सक्रीटा रहता है उसी में से हम लोग क्या बनाते हैं, वी आर मेकिंग डंग केक्स. दे आर कंबस्टिबल एंड दे आर यूज्ड इन सम प्लेसेस एज अ फ्यूल. मीन्स वो फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं. जैसे गोबर बोलते हैं हम लोग जिसको, गोबर के हम लोग उसके ओपले बनाते हैं, फिर उसी को आप लोग गांव में देखे होंगे कई बार चूल्हे में वो लोग उसको जलाते हैं ताकि चूल्हा जल पाए. तो वी आर यूजिंग एज अ फ्यूल. फ्यूल का मतलब क्या है, जैसे पेट्रोल होता है वैसे ही ये एक फ्यूल के जैसे काम करता है. When they burn, they give out smoke. A combustible gas
कॉल्ड गोबर गैस, जैसे मैंने आप लोग को बताया गोबर के उपले बनते हैं, गोबर का ही बनता है वो। इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कैटल डंग एंड दैट टू इज यूज एज अ फ्यूल। इट बर्न्स विदाउट स्मोक। वहाँ पे ये जो बनता है डंग जो रहता है, डंग केक्स रहते हैं या फिर गोबर गैस जो रहता है, जो उससे डंग से ही बनता है, लेकिन वो क्या है कि गोबर गैस जो बनता है वो बनने के बाद वो स्मोक पैदा नहीं करता है, जैसे धुआं नहीं होता है। जैसे गांव में चूल्हे में आप लोग जैसे वो उपले जलाते हो तो क्या होता है, धुआं पैदा हो जाता है, लेकिन इसमें धुआं नहीं होता है। देन कैटल डंग इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग मड हाउसेस। कैटल डंग आप लोग ने गांव में देखा होगा कि जैसे यहाँ पे सीमेंट वगैरह लगाते हैं घरों में, लेकिन गांव में ये सब चीज़ें अवेलेबल कम रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो काव डंग रहता है जिसे हम लोग गोबर बोलते हैं, उसी से क्या करते हैं, पूरे घर को वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर लेपते हैं, मतलब उसको पूरा स्प्रेड करते हैं उसके ऊपर, लाइक अ प्लास्टरिंग द हाउसेस। मैन्योर्स मेड बाय कैटल डंग एंड शीप पैलेट्स आर गुड फॉर द प्लांट्स। मैन्योर्स मतलब खाद जो रहती है ना, खाद जैसे आप लोग ने देखा होगा प्लांट्स लगाते हैं तो साथ में खाद डालते हैं ताकि क्या है वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सके। तो वही चीज़ वो लोग गांव में यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर द फार्मिंग पर्पज। फार्मर्स यूज देम फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। नाउ यू कैन सी हियर how the animals are helping. You see in this picture, yes, the horse is carrying so many things on his back, right? And then see the other picture, like it's a transport, like tempo it is, or tanker you can see. And then dog, he is guarding the house. And the cat is very much lovable, you can see. She is very cute and she also guards the house, but many of the people keeping them for the entertainment. Okay, these are the animals who are our friends, right? Now let's move on to the page number 11. See here what they said. Yes, जस्ट एज वी नीड एनिमल्स वी नीड प्लांट्स टू। जैसे एनिमल्स की हम लोग को ज़रूरत रहती है, वैसे ही हम लोग को प्लांट्स की भी उतनी ही ज़रूरत रहती है। प्लांट्स गिव्स अस फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वी लव फ्लावर्स टू। वी यूज देम फॉर मैनी डिफरेंट पर्पजेज। वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स, वी ऑल्सो गेट कॉटन वुल फ्रॉम प्लांट्स टू मेक कॉटन क्लोथ्स। Means the plants are also helping us like animals. How the plants are helping? They are giving us food grains. Food grains कहाँ से आता है, गेहूँ चावल वगैरह सब कहाँ है, क्रॉप्स रहते हैं ना, तो वो प्लांट्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी हमें यूज़फुल रहते हैं। फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी हम लोग को प्लांट से मिलते हैं, फ्लावर्स भी मिलते हैं। एंड देन क्लोथ्स जो हम लोग पहनते हैं कॉटन वाले, हाँ वो भी किससे बनते हैं, कॉटन प्लांट जो रहता है ना रुई का, उससे, तो वो भी हम लोग को यूज़फुल है। वी ग्रो प्लांट्स दैट आर यूज़फुल टू अस मैथोडिकली। मैथोडिकली मतलब हम लोग मैथड्स यूज़ करके वो प्लांट्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। वी सो सीड्स, पहले हम लोग बीज डालते हैं। वी मेक श्योर दैट दे गेट वाटर, और रोज़ ये देखते हैं कि धीरे धीरे उनको रोज़ क्या करें, पानी मिलता जाए। वी गिव मैन्योर व्हेन नेसेसरी, और जहाँ पे हम लोग को खाद डालने की ज़रूरत रहती है वहाँ पे खाद भी डालते हैं। वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स इफ दे आर अटैक बाय इंसेक्ट, अगर उसके अंदर कीड़े हो जाते हैं तो हम लोग पेस्टिसाइड्स डालते हैं, दवाई डालते हैं, ताकि वो प्लांट्स अच्छे से क्या कर सके, ग्रो कर सके। देन प्लांट्स टू गिव अस प्लांट टू गिव टू अस अबंडेंटली, दे सेटिस्फाई आवर नीड्स। अबंडेंटली मतलब कि बहुत सारी चीज़ें देते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, तो प्लांट्स भी हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। फिर दे सेटिस्फाई आवर नीड्स। नाउ अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम एनवायरमेंट। दूसरे भी कुछ ऐसे जीव हैं जिनको एनवायरमेंट से बहुत कुछ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल चैमिलियन ईट इंसेक्ट व्हेन दे आर हंग्री। चैमिलियंस क्या है, एक बड़ा प्राणी है, मतलब इंसेक्ट नहीं बोल सकते उसको, रेप्टाइल है वो।
इट इज़ एन रेप्टाइल। तो वो क्या करता है, छोटे इंसेक्ट जो रहते हैं उनको क्या कर देता है, खा लेता है। एंड देन सम स्नेक्स ईट माइस एंड फ्रॉग्स। और स्नेक्स जो होते हैं जैसे सांप वगैरह किसको खाते हैं, माइस। माइस मतलब माउस, जो रैट्स रहते हैं उनको, और फ्रॉग्स को खा जाते हैं। टाइगर्स ईट डियर, गोट एंड शीप गोट एंड शीप ईट लीव्स ऑफ द प्लांट, कैटल ईट ग्रास। मतलब सब लोग जितने भी प्राणी हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। वो लोग एक दूसरे को खा के क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं। नाउ सी हियर न्यू टर्म I already show you on the whiteboard. What do you mean by arboreal animals? Arboreal animals are that they are living in trees. See, this word comes from Latin word arbor, which means tree, and arboreal means living in trees. See here, animals like monkey and squirrels live on trees. It gives them certain advantages. Being at a height, they are better able to defend themselves from their enemies. सबसे पहले जो आर्बोरियल एनिमल्स रहते हैं उनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि वो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं तो ज़्यादातर जो भी प्राणी शिकार करने आते हैं उनसे वो बचे हुए रहते हैं। उनके एनिमीज जो रहते हैं उनसे बचे रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं। ये उनका बेनिफिट है, किसका, आर्बोरियल एनिमल्स, दोज हु आर लिविंग इन ट्रीज। बिसाइड्स दे कैन ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज टू सेटिस्फाई देयर हंगर। दूसरा बेनिफिट क्या है कि पेड़ पे रहते हैं तो पेड़ के जो फ्रूट्स वगैरह रहते हैं उससे ही वो अपना पेट क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। देन सच एनिमल्स आर सेड टू बी आर्बोरियल। यही एनिमल्स को क्या बोलेंगे, आर्बोरियल। अननोइंगली दे हेल्प द ट्री विथ whose support they live. As they move around here and there in the surrounding, they spread the seeds of fruit they have eaten through the dropping. Because of this, new trees grow in different places. Some type of birds too find trees useful for building their nest. कुछ बर्ड्स वगैरह जो हैं वो बिल्डिंग्स में जाके छोटा सा अपना घोंसला बना लेते हैं, वहीं पे रहते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं कि जो ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन कई बार जो चीज़ें उनको मिल जाती है प्लांट से या फिर आजू बाजू के जो छोटे मोटे इंसेक्ट रहते हैं उनको खा के अपना क्या करते हैं, वो लोग गुजारा निकालते हैं। तो इस तरह से ये तो समझ में आ रहा है कि all the animals are dependent on other animals or the insect, right? Now let's move on to the next page. See on the next page, page number 12. Do you know an egret rides on a buffalo's back? You can see here egret riding on the buffalo's back. Why is it so? See, when a buffalo is grazing in the grassy area, you are very likely to see an egret riding on its back. ज़्यादातर आपने ये सीन देखा होगा गांव वगैरह में, या फिर नहीं देखा तो टीवी पे भी देखा होगा। तो ये मोस्टली हम लोग देखते ही है टीवी पे वगैरह पे या फिर कहीं पे भी। सो व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट, उसके ऊपर एग्रेट क्यों बैठता है। और सर्टेन काइंड ऑफ एग्रेट फीड्स ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। Grass is full of all kind of insects, but because they are hidden in the grass, the egret cannot see them and catch them. What happens, egret जो रहता है वो ज़्यादातर इंसेक्ट की खोज में वो वहाँ पे बैठा रहता है। What he is thinking means if he is going to ride on buffalo, he can see the insect inside the grasses. As the buffalo treads on the grass, it frightens the insect. जैसे ही बफेलो ग्रास के अंदर घुसता है तो क्या होता है, सब इंसेक्ट जो होते हैं वो डर के मारे इधर उधर भागने लग जाते हैं। Which fly out of the grass, ग्रास में से बाहर भाग जाते हैं। And the egrets on the buffalo's back makes no mistake in swooping down to catch and eat them up. और यही एग्रेट क्या करता है, जैसे ही वो देखता है कि इंसेक्ट भाग रहे इधर उधर
तुरंत उनको जाके कैच करता है और उसे खा लेता है। तो अभी पता चला एग्रेड बफेलो के बैक पे क्यों बैठता है, क्योंकि उसे पता है जब बफेलो ग्रासलैंड में जाएगा तो उसके जाते ही जो इंसेक्ट है वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और वो इंसेक्ट वो आसानी से उनको पकड़ सकता है। सो चिल्ड्रंस, वी स्टडीड अबाउट the types of animals, their interrelationship and how they are depending on each other. Now let's move on to the whiteboard. So students, we learned all the things which I have told you. You just see here. We have seen how the people and the animals and plants are dependent on each other, and how animals and plants are useful to the human being also and to each other also. And we have seen the types of animals. Now we are going to see some more things season wise, how the animals and plants are useful to us, that we are going to see in the part 3. So this much is there in this video. Thank you so much, children.